Welcome to the third and last session on the repeated measure ANOVA. थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि प्रीवियस दो सेशन में हमने क्या पढ़ा था ताकि लिंक हो जाए. So initially we discussed about what we mean by the one-way repeated measure ANOVA. Then we discussed an example of the cigarette and hypnotherapy. Then we discussed the difference between one-way and two-way. After that, we discussed the different assumption and how we can check them that either there is a violation of the assumption or the assumption are met. Specifically, the most important one was the one which is here the assumption 5, which is the sphericity, and which we discussed that if either there is a violation of the sphericity, and then we can have correction, and three types of correction we have, and these three type correction, these are the GG, which we can have called as the greenhouse geyser correction, the Winfield correction and the lower bound. इसको हम करेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अगर नॉर्मली यहाँ पर assumption मेट हो रही है, सिग्निफिकेंट पी वैल्यू से कम है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो इसका कम है, इसका मतलब है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और ये assumption वायलेट हो रही है. तो फिर अगर हम यूज करें तो करेक्शन के साथ हम रिपोर्ट करेंगे कि इट वाज यूज्ड विद द एप्सिलॉन, the greenhouse geyser epsilon correction or with the Winfield correction. तो ये correction जरूर हमने फिर mention करनी है if there is violation. और उसके लिए भी हमने वैल्यू डिस्कस की जो रूल है कि अगर violation हो रही है and if this epsilon greenhouse geyser epsilon is greater than 0.75, then we will use the Winfield, and if it is less than, then we will report the greenhouse geyser correction rule. So yeah, that was all assumption. Then we applied the different steps of the repeated Meyer ANOVA. There was total 16 steps. And now this is actually the slide where we will start in this third session. यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, so you can write down in the chat box and we will discuss at the end of the session. So let's discuss one by one table which we will met with our species outcome. सबसे पहले जो हमारे टेबल आ जाती हैं, क्योंकि आपको याद हो हमने स्टेप्स में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्लिक किया था, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमारे पास आएगा. एस्टिमेट इफेक्ट साइज हमने टिक किया था, तो ये एस्टिमेट साइज इफेक्ट भी प्रीवियसली जब हम होमोजेनिटी टेस्ट सिर्फ हमने क्लिक किया था इन द एजम्पशन चेकिंग, सो हमें इफेक्ट साइज वहां पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये हमने चेक नहीं किया. राइट नाउ इन द टेबल वी विल हैव द हमारे पास इफेक्ट साइज भी जो है अवेलेबल होगा. तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसमें विद इन सब्जेक्ट फैक्टर की बात करते हैं. हमारे पास जो dependent variable है, this is the C reactive protein which we assess the level of CRP at the before the treatment, at the mid of the treatment, and the just after the immediately after the end of the treatment. So ये हमारा dependent variable है which इसको हमने 3 times different time पे हमने एक ही population से लिया है. So that's why it's called as the within subject. Within subject का मतलब ये है कि एक ही बंदे से हमने एक ही पॉपुलेशन से हमने 3 और मोर देन 3. अगर ये पॉपुलेशन अलग अलग हो जाए और हम पे सपोज 3 population groups हैं and 3 of them they are receiving different treatment and we are checking the CRP level, so then they will be called as the between subject factors, right? This is the descriptive statistic. At the start of the treatment, the researcher ने 10 बंदों को रिक्रूट किया था, तो उन 10 बंदों का ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज थेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले the mean CRP level was 7.9, standard deviation of the 7.37. After 3 months of exercise therapy, the CRP level reduced, the beat score reduced to the 6.1 with 8.77 standard deviation. And at the end of the treatment, at the end of 6 months, there was a decline, a significant decline from 6 to the 3.94 CRP level with 0.804 standard deviation. This is the skeptic deviation.
and and every year these were 10 people, and these 10 people were the same in this CRP pre, CRP mid, CRP 10. अब ये जो रिपीटेड मेजर इनोवा हम करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से 3 टाइम हमने डेटा लिया, तो ये जो एक्सरसाइज थेरेपी 10 पार्टिसिपेंट ने रिसीव की, तो उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं इन द सीआरपी लेवल, क्या ये सिग्निफिकेंट चेंज है? लेकिन एक ड्रॉबैक जो हमें ये रिपीट मेजर इनोवा नहीं कह सकती कि ये जब प्री से मिड की तरफ जा रहे थे तो देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज और नॉट, फिर मिड से पोस्ट की तरफ जा रहे थे देयर वाज सिग्निफिकेंट और नॉट, या डायरेक्ट अगर हम स्टार्ट एंड एंड डिस्कस करें प्री एंड पोस्ट, तो ये देयर वाज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो ये हमें पेयर वाइज रिजल्ट नहीं बताती, इसलिए हम इसका पोस्ट हॉक एनालिसिस करेंगे। पोस्ट हॉक एनालिसिस का मकसद ये होता है कि हमें पेयर वाइज जो है रिजल्ट बता दे कि सपोज प्री वर्सेस मिड, मिड वर्सेस पोस्ट एंड प्री वर्सेस पोस्ट, इनके दरमियान सिग्निफिकेंट चेंजेस आई थी कि नहीं, ये हमें पोस्ट हॉक एनालिसिस बताएगी। और तो ऑलरेडी हमने बोनफिरो ने अप्लाई किया था, तो उसका भी टेबल आगे जो है आने वाला है। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। हमने जो है ये मॉक टेस्ट भी अप्लाई किया था टू चेक द sphericity, and now in that case we can see the significant, the p value is higher than 0.05. It means the null hypothesis being accepted, and we can say there is no violation of the sphericity. This assumption is met. So there is no need of any correction of the greenhouse geyser effect, the Winfield correction, no need of this correction because already the assumption is met here. अब हमारे पास टेबल दूसरा जो आएगा, दैट इज द टेस्ट विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट टेबल। अब ये टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट टेबल है जो हमें बताएगा कि ओवरऑल जो 6 मंथ प्रोग्राम है, इसमें जो डिफरेंस अक्रॉस द मीन ओवरऑल जो है ये सिग्निफिकेंट थे या नहीं थे, तो इसके सिग्निफिकेंस हमें बताएंगे। तो ये हमें जो है, इसके अलावा ये हमें एफ स्टेटिस्टिक के बारे में बताएगा फॉर द टाइम फैक्टर। इसके अलावा ये हमें पार्शियल ईटा स्क्वायर बताया कि विच इज द इफेक्ट साइज, क्योंकि हमने इफेक्ट साइज यहाँ पे एस्टिमेट इफेक्ट साइज क्लिक किया था, तो ये हमें पार्शियल ईटा स्क्वायर जो है ये टेबल दे देगा। दैट इज जब हम प्रीवियसली ये मॉक टेस्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट इसको मोस्टली कहते हैं, कुछ मोस्टली कहते हैं, सो बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज द मॉकली टेस्ट। तो यहाँ पर ये पार्शियल ईटा स्क्वायर विच इज एक्चुअली इफेक्ट साइज ये नहीं था। अब चूंकि हमने वहां पे क्लिक किया था, तो ये इज एक्स्ट्रा हमारे पास ये आउटपुट में आ गया है। तो ये हमें बता देगा कि इधर इफेक्ट साइज हमारे क्या है, एफ वैल्यू हमें बता देता है, और डिफरेंस मीन हमें बता देता है, पी वैल्यू जो है यहाँ पर हमें बता देगा। फिर इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। if sphericity is assumed, so we will report this row. If there is sphericity is violated and the epsilon of the GG was the greenhouse geyser effect, our correction was less than 0.075, 0.75, तो फिर हम ये रो रिपोर्ट करेंगे। एंड आफ्टर अगर यहाँ पर 0.75 से एप्सिलॉन ज्यादा है, तो फिर हम वेनफील्ड इफेक्ट जो है या करेक्शन जो है ये रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट का तरीका ये होगा कि इफ ये देखिए, after that when using an ANOVA with repeated measure with the greenhouse geyser correction, suppose if we have used that, the mean score for the CRP concentration was statistically significant difference. That is the F statistic. Then यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.867 and 16.8, ये दोनों क्या है? These are the mean of the square, जो यहाँ पे डिफरेंस से हमने नहीं आता, यहाँ पे आप आ सकते हैं। सही, this is the degree of freedom, सही है, of the at the time, and 16 जो है this is the degree of freedom for the error time। तो जब हम if statistic जो है ये रिपोर्ट करते हैं, so that हम इस तरह के if into 1.867 to 16.801, which is actually the error time, which is actually the जो remaining variance जो अभी तक explain नहीं है by the time, ये उसका DF है।
and that was the 307. 307 अगर आप देखिए तो ये सब का सब ये किस तरह आता है एक्चुअली द एफ स्टैटिस्टिक जो है दिस इज इक्वल टू द मीन ऑफ द सम स्क्वायर डिवाइडेड बाय द मीन ऑफ स्क्वायर इन द एरर टाइम यानी 39.396 को अगर आप डिवाइड करें 0.128 में तो आपका 307 आ जाएगा। इस तरह अगर ग्रीन हाउस गैजर जो है इसका चेक करें 42.208 डिवाइड बाई 1.137 यानी इसका ये तो ये 307 आएगा। इस तरह 33 ये देखिए 33.396 और ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर 0.28 ये 0.28 भी एक जैसा है। तो इन सब का जो है ये इस तरह 78 को अगर आप 2.256 पे डिवाइड करें सो दैट विल बी इक्वल टू सो द एफ स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू the mean square of the time, which is actually the variance explained by the independent variable. और ये क्या है? This is actually the remaining variance which is still जो है that is not explained by the time. That may be some another independent variable which is explaining that variance in the outcome variable. So हमने जब रिपोर्ट करनी है तो उसमें हमने लिखना है if फिर ब्रैकेट के parenthesis के अंदर हमने ऐड करने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द टाइम। सपोज अगर ये स्पेसिफिसिटी ज्यूम था तो हम लिखेंगे 2, 18 विच इज एक्चुअली टाइम और एरर का और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंकर इज इक्वल टू 307.248 उसके बाद जो है लिखेंगे कॉमा पी इज इक्वल टू चूंकि ये दिस इज वेरी हाईली सिग्निफिकेंट सो इन इस बेसिस वी राइट इट लाइक हियर इट इज लेस देन 0.001 सही। तो अगर हम इप्सिलॉन जी जी यूज करते हैं तो जिन वी शुड इट इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस गैजर करेक्शन या वेनफील्ड करेक्शन यूज करते तो हमने इसको रिपोर्ट करना है। तो इसलिए हम इस टेबल में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दिस इज दिस पी वैल्यू एफ स्टैटिस्टिक एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम सही। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए इसकी जरूरी है कि k-1 जो है अब k जो है ये आपका लेवल है 3 लेवल हमने किया था तो टाइम जो है दैट इज मीन प्री देन मिड एंड देन पोस्ट तो 3 है सो 3-1 इज इक्वल टू 2 so degree of freedom for the time for the independent variable level of independent variable is k-1 जबकि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहे हाउ 18 किस तरह आ गया है इसका स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला ये है कि n-1 मल्टीप्लाइड बाय k-1 तो इन जो है ये जब n-1 हम कल n जो दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस ग्रुप सो कितने हैं दे आर 10 इन नंबर तो n-1 कितना हो जाएगा 10-1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और इसके बाद जो है k-1 वो तो ऑब्वियसली 2 आ रहा है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दे विल मेक इट द 18 सो एरर टाइम जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन क्या है दिस इज k-1 ब्रैकेट में बंद कर ले मल्टीप्लाइड बाय n-1 multiplied by k-1 which will equal to 9 multiplied by 2 because 10-1 and 3-1 is equal to 9 multiplied by 2 is equal to 18। इसी तरह फिर ये ग्रीन हाउस गैजर और हैंडफील्ड का भी इस तरह कैलकुलेट किया गया है। तो हम डीएफ रिपोर्ट करेंगे उसके साथ साथ जो एफ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम ये पी वैल्यू रिपोर्ट करेंगे दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मेजर एनोवा व्हिच मीन अगर हम एक्सरसाइज इनका क्या मतलब हुआ ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज इन द सीआरपी व्हेन द पेशेंट वाज रिसीविंग द एक्सरसाइज थेरेपी तो उनमें सीआरपी लेवल जो है इस सिग्निफिकेंटली जो है उसमें चेंज आया। सो इसका मतलब ये है कि यस if someone want to reduce the risk of the heart rate, the risk of the heart diseases, so they should be she should receive that exercise therapy, that exercise program because result literature के मुताबिक it is bringing the very significant, highly significant change in the CRP level। और हमने डिस्कस किया था कि CRP जितना हाइयर होगा उतना ही जो है हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है तो अगर एक्सरसाइज ये सीआरपी लेवल कम
लेवल पे लेके आता है, इसका मतलब है इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ये तो हमारे तीन टेबल्स हो गए। एक टेबल हमारा ये हुआ कि विच इज इक्वली नोन एज द टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट, जो हमें रिपीटेड माइग्रेनोवा के बारे में बता देता है। द मॉगली टेस्ट हमने डिस्कस कर दिया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और विद इन सब्जेक्ट फैक्टर का जो हमने डिस्कस कर दिया। एंड वी कैन सी हमारा आउटकम जो है ये सीआरपी यहाँ पर मेंशन है। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द पेयर वाइज कंपैरिजन टेबल। यानी हमें अब ये नहीं पता कि प्री और पोस्ट के दरमियान जो है डिफरेंस ये सिग्निफिकेंट था या नहीं था, प्री और मिड के दरमियान सिग्निफिकेंट था या मिड और पोस्ट के दरमियान। तो ये जो तीन पेयर्स बनते हैं ए बी सी से, हमने पिछले डिस्कस किया था कि अगर सपोज ए बी सी इज द टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3, तो ए वर्सेस बी वर्सेस सी एंड ए वर्सेस सी, तीन पेयर्स बनते हैं। वी डोंट नो इन तीनों पेयर्स के दरमियान जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि रिपीटेड मेजर ओवरऑल हमें बता देती है। यानी फ्रॉम डे 1 फ्रॉम डे 0 टू द दैट एंड ऑफ द 6 मंथ ओवरऑल हमें ये बता रही कि सिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन पेयर वाइज जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट होक एनालिसिस बताती है। और यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि इनोवा में हम टिकी लेते हैं पोस्ट होक एनालिसिस में, जबकि रिपीटेड इनोवा में हम बोनफिरोनी जो है ये ले लेते हैं। सो नेक्स्ट टेबल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें बोनफिरोनी पोस्ट होक एनालिसिस है, जिसमें हम डिस्कस मुख्तलिफ पेयर्स के दरमियान जो है ये पी वैल्यू जो है और साथ साथ इफ स्टेटिस्टिक सब हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर इफ योर दिस इज एक्चुअली द रूल, ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज एक्चुअली द रूल। इफ योर ओवरऑल इनोवा रिजल्ट वाज नॉन सिग्निफिकेंट, मीन यहाँ पर जो हमारी पी वैल्यू है ये नॉन सिग्निफिकेंट आ रही थी, then there is no need of the pairwise comparison. If you do, you should not examine the pairwise comparison tab. There is जरूरत नहीं उसकी। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आ जाती है, फिर हम जो है हमने ये पेयर वाइज कंपैरिजन टेबल की तरफ जाना है। वी कैन सी हियर हमारा आउटकम जो है दिस इज द सीआरपी लेवल। यहाँ पे देखे टाइम 1 टू 3 लिखा है, तो ये 1 जो है दिस इज द मिड, सॉरी प्री ट्रीटमेंट, टू जो है दिस इज द मिड एंड 3 जो है दिस इज द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जो है 1 को कंपेयर किया गया है विद द सेकंड यानी मिड के साथ और फिर 3 के साथ। तो जब 1 को सेकंड के साथ यानी प्री ट्रीटमेंट सीआरपी प्री वर्सेस सीआरपी मिड को जब पेयर वाइज कंपेयर किया गया तो देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज। फिर उसके बाद जो है ए वर्सेस सी जो है, यानी अगर हम 1 को यानी प्री सीआरपी प्री को सीआरपी पोस्ट के साथ जो है कंपेयर कर लिए विच इज 3, सो अगेन देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज। फिर हम यहाँ पे ले ले 2 को, 2 अगर मतलब ये का मतलब है कि सीआरपी मिड वर्सेस सीआरपी स्टार्ट या प्री जो है, तो इसका मतलब है कि 1 2 और 2 1 एक जैसे हैं, वो भी सिग्निफिकेंट। और वी कैन सी हियर द स्टैंडर्ड एरर इज 1.6 एंड ये देखिए ये रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। सिंपल माइनस सिर्फ चेंज हुआ बिकॉज वो हम जो है रिवर्स पेयर कर रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों जो है ये सेम रिपोर्ट आ रही है। सही। उसके बाद अगर आप देखिए 2 वर्सेस 3, तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी जो है ए वर्सेस बी ए वर्सेस सी ऑलरेडी हो चुका है, और राइट नाउ वी हैव द बी वर्सेस सी, तो ये भी जो है सिग्निफिकेंट। और 2 वर्सेस 3 देखे तो ये अगेन ये देखिए ये दोनों से अब रिवर्स हो गए हैं, अदरवाइज इनका स्टैंडर्ड एरर और सिग्निफिकेंट। तो इससे मुराद ये है कि अगर हम कंपेयर करें ट्रीटमेंट से पहले जो इफेक्ट्स थे विद द मेड, वो भी सिग्निफिकेंट चेंज आई थी सेकंड टाइम पे। और फिर अगर हम कंपेयर करें कि मिड से लेकर जब द रिमेनिंग 3 मंथ्स सेकंड 3 मंथ, उसमें भी जो है सिग्निफिकेंट चेंज आ गई थी। और अगर प्री और पोस्ट कंपेयर करें तो उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंज। इसका मतलब ये है कि आप जो है 3 मंथ भी यूज करें सो दैट मे लीड टूवर्ड्स द सिग्निफिकेंट चेंजेस। बट अगर 6 मंथ चेंज हम ये यूज करें ये थेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी, सो इट विल ब्रिंग मोर चेंजेस देन द 3 months. So that was all about the repeated measure ANOVA and its assumption and each and everything and interpretation. ये जो लास्ट टेबल हमने डिस्कस किया ये हमें यही बताता है, जैसे अगर हम इसको रीड करें सो इट विल ही कैन राइट दैट
we can see that there was a statistically significant difference in the CRP concentration pre-intervention compared to the 3 months into the intervention, which mean P is equal to that साइन का मतलब है कि ये 0.000 आ रहा था. We don't know what is the exact value of the p value. So in statistic 0.000 p value हम इस तरह denote करते हैं, that is p is less than 0.001. And from pre-intervention to the post-intervention, again it was equal to the less than 0.001. And then in the last, अगर हम compare करें from 3 to 6 months, it was again less than 0.001. So in all the three pairs, they were highly significant. So that is the end of today's session. We discuss the repeated Mayan ANOVA. What is repeated Mayan ANOVA? What are its types? When we use repeated Mayan ANOVA, what are the assumptions and how we can assess them in species? What are the procedure in these species and how we can interpret the result of the repeated Mayan ANOVA? If you have any question, we will discuss them in detail. You can write down in the chat box. Otherwise, in the next few minutes, we will end up this session. या आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, आप वॉइस भी कर सकते हैं, चैट भी. वी हैव अ मैसेज हियर, व्हाई इट इज 0.01, व्हाई नॉट 0.05. अच्छा, यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाए. इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर लेके 0.05, इसका मतलब ये है कि 0.04 भी है, 0.03 भी हो सकती है. ये जो हम 001 लिखते हैं, इसका मतलब है कि हाईली सिग्निफिकेंट है. ये जो है ये 0.000 है. तो हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, बट एटलीस्ट जो है ये वैल्यू, अब ये आपकी बात सही है, ये स्टिल इट इज सिग्निफिकेंट, ये 0.05 से कम है, लेकिन हम इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हाईली सिग्निफिकेंट इसमें मेंशन हो जाए दैट दिस वैल्यू इज. अगर ये इस तरह होता 0.003, तो फिर हम ये लिख देते जो आपने कहा कि इट इज पी वैल्यू वाज लेस देन 0.05. या अगर इस तरह होता 0.021, फिर भी हम लिख सकते थे कि 0.05, लेकिन चूंकि ये हाईली सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू इज टू स्मॉल, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसलिए नहीं पता कि हो सकता है कि 0.000000123 पता नहीं कौन से डिसिमल पे ये नंबर आ जाएगा. तो पहले पी वैल्यू सिर्फ 3 डिसिमल के साथ रिपोर्ट होती है. तो अगर राउंड डेटा की जाए, इसलिए ये 0.00 को राउंड डेटा के बाद ये प्रेजेंट किया गया है. सो इसको, इसकी जो स्ट्रांग सिचुएशन है उसको बरकरार रखने के लिए हम लिख देते हैं कि एटलीस्ट इट इज लेस देन 0.001. और अगर 0.01 से एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो फिर हम 0.05 लिखते हैं. बाकी जो है देयर इज नो डिफरेंस इन रिपोर्टिंग द. आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज 0.05 से कम है, बट दैट विल नॉट शो अस द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन बिटवीन देम. कोई और क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे मैसेज में भी कर सकती हैं, और यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली. लाइव आई थिंक दैट विल बी नाउ क्लियर. सही है, 0.01 और 0.05 सिर्फ इसलिए कि ताकि हमें और जो हाई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है ये नजर आ जाए. बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब हम कोरिलेशन करते हैं तो वहां पर पी वैल्यू की बजाय हम स्टार लगा लेते हैं. टेबल में अक्सर आ जाता है जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है, तो वहां पर कभी एक स्टार होते हो, कभी दो स्टार होते हो. तो वो वन स्टार का मतलब होता है जो मतलब आर स्क्वायर, जो आर वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, उसके ऊपर अगर एक सिंगल स्टार है, उसका मतलब ये है कि 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन सही है, सिर्फ सिग्निफिकेंट है. टू स्टार अक्सर अगर होते तो उसका मतलब ये होता है कि दैट इज सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट है, एंड दिस इज 0.001 से भी कम है. तो अमूमन जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक स्टार के बजाय आप टू स्टार लेके, सो एक स्टार मीन जैसे 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है, बट द वैल्यू इज हायर देन 0.01. एंड इफ इट इज 0.00000, तो देन जो है हम लिख देते हैं, टू स्टार लिख सकते हैं इन द कोरिलेशन मैट्रिक्स में, अगर वहां पे हम पी वैल्यू के लिए एक्स्ट्रा टेबल जो नहीं देते.
अस्सलाम वालेकुम सर। सर ओके इंशाल्लाह समरीन आपकी लेक्चर्स और इनकी रिकॉर्डिंग सारे के सारे आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। वालेकुम सलाम। जी अजद। जी सर। जी सर। सर मैंने पूछना था कि ये स्पेसेस हमें मिल सकता है, लाइक इन सेंस कि इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करें। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको मैं ये गूगल ड्राइव पे मेरे पास है, तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा और प्लस एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो भी सेंड कर लूंगा कि हाउ यू कैन इंस्टॉल इट इन योर लैपटॉप। और बिल्कुल आपकी बात से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी भी जो है स्पेसिस इस तरह जो है देख के जो है सीख नहीं सकती, तो आप काइंडली इस पर जरूर प्रैक्टिस करें। बाकी इस लेक्चर की 3 सेशन की रिकॉर्डिंग और आपको ये लेक्चर जो है जरूर आपको इंशाल्लाह हम दे देंगे। सही है। थैंक यू सर। ओके, सो इट मीन वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। सही। वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन ऑफिशियली। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।